corporate earth. So we were talking about a strong form of the Frobenius theorem. A stronger form. Whiteboard visible? Yes, sir. Sir. Good. Frobenius theorem, stronger form. So why it is stronger? Because it is for general case, double derivative for generalized case, or you can say non-rectangular case. So we saw that the formula for the volume, so it depends on the region. Region is given to you. So sometimes region may be in terms of y as a function of x. So you can take g1x to g2x, fxy, dy dx, or it may be c to d, x is equal to some h1y to h2y, f of xy dx dy. Okay. So we basically take the last limit should be in scale, should be some scalar, and the intermediate limit should be some function of y or some function of x. So you will be getting the volume, because volume is some scalar quantity. You cannot take function as the first and that cd or ab, that scalar limits as the intermediate. उसमें क्या होगा, आपको x या y के टर्म में आंसर आएगा, है ना. तो बेसिकली क्या होगा कि स्केलर जो क्वांटिटी दैट विल बी योर लास्ट लिमिट, यानी कि सेकंड लिमिट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. तो व्हाट वी डू, वी जस्ट टेक द रीजन, क्योंकि ये आपके पास एक्स वाई की लिमिट है, तो यू जस्ट प्लॉट द रीजन, जैसे एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी in this case, and y lying between g1x to g2x. So it depends on the problem what limit we should take. ये आपको प्रॉब्लम देख के खुद आइडेंटिफाई करना होगा. Yesterday I was doing one problem in timeout. First, sin x over x. This is the problem. Page number 844 पर थी. Find this double integral r sin x over x dA. है ना? So here the author wants what? You should try the limits by yourself. है ना? इसमें लिमिट नहीं गिवन है. तो एग्जामिनर अगर ऐसे प्रॉब्लम दे रहा है तो इसका क्या हुआ कि he or she wants to check कि whether you know the concept of not. यहाँ पर R और D आपको खुद चूज करना है. R was given here कि एक रीजन है. R क्या था? रीजन था, इसे हमने प्लॉट किया था. On the first quadrant, line y is equal to x, lying between this and x is equal to 1. It was your R given to you. इससे आपको लिमिट निकलेगी, है ना. तो व्हाट आई टुक हियर, फर्स्टली आपने कहा कि सर पहले y लिमिट ले लें. तो y लिमिट के लिए व्हाट आई टोल्ड यू, जस्ट टेक अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इट विल गिव यू द y लिमिट, है ना. सो y इज एंटरिंग, जस्ट एंटर होगा रीजन में, ये पूरा रीजन है आपका, दिस इज द रीजन. So where y enters, that is the lower limit. So this will equal to y is equal to 0, and where it leaves 0 to x. X limit will be what? Now this line I can take minimum up to this. So it is x equal to 0, and maximum up to this. This is x equal to 1. And sin x over x, this is your y limit dy dx, है ना. तो इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आ गई थी? 1 minus cos 1, which was approximately 0.46 approximately. By calculator you can find it. Now if we change the, suppose somebody was, limit is not giving, so somebody can take the limit, firstly limit of x and then y, है ना. क्यों भाई? Then what will happen in that case? How to take the limit? You will take the limit of x, so you will take a ray. कैसे रे लेंगे? If I want to take, suppose the same problem, I am taking the limit of x. तो बताइए what is the limit of x initially? So I will take a line parallel to x axis, है ना, this green line. So x is entering here and leaving it here in the region. Region में देखना है. तो when it is entering, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है in terms of y? X is equal to y, and it is leaving here.
So x is equal to 1. And what is y? Now is this line I will say what is the minimum value it can take. ये y axis है आपका, this is 0 and the maximum value it can take up to this point. What is this? Here y is how much? क्या लूं, x लूं क्या? क्या ले y? यस सर x। x को हम ऑलरेडी लेकिन y में लिख चुके हैं ना, x इक्वल टू y. तो here what I told you कि y की लिमिट, because y is the last limit, तो y लिमिट should be in scalars. तो यहाँ इस पॉइंट पे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? What is the value of y here? 1 है ना, तो 1 लेंगे. देखो x की लिमिट हमने ऑलरेडी y में ले ली है इन योर फर्स्ट लिमिट. सेकंड लिमिट शुड बी ऑलवेज सम स्केलर्स, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू देगा. तो y यहाँ पर y x नहीं है, हम मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं y की क्या है. तो मैक्सिमम क्या है इस पॉइंट पर? y की वैल्यू 1. ओके, तो यहाँ पर y 1 लेंगे, x नहीं लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि x तो इस पूरी लाइन पे था. बट एट द मैक्सिमम, एट द पीक पॉइंट y इज 1, यहाँ 1 है y. एंड sin x upon x dx dy. Now its integral is very complicated. देखो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? इसे इंटीग्रेट करेंगे पहले with respect to x. So you have to integrate firstly this. Its integration is not easy. फ्रैक्शन में sin x upon x आप बाय पार्ट से नहीं कर सकते थे इजीली, क्योंकि बाय पार्ट में क्या होगा, x भी बढ़ता रहेगा और sin x भी चेंज होता रहेगा. क्यों? इसका इंटीग्रेशन sin x से नहीं हो जाएगा सर. कैसे करोगे आइलेट से, बताओ. 1/x को अलग कर लेंगे, sin x को अलग कर फिर लेंगे. चलिए कर लिया. फिर फर्स्ट फंक्शन किसे माने? वो गलत हो जाएगा सर, cos x बन जाएगा, उधर log x बन जाएगा सर. फिर और फिर करेंगे तो log x का फिर क्या होगा, ये होगा ना. तो इट विल बी कीप गोइंग ऑन. फिर यही सेम आ जाएगी, सेम आ जाएगी सर. तो उसको आई मान लेंगे. नहीं आई सेम नहीं आएगी, log x की बराबर x कोई आएगी. फिर उसको फंक्शन नेक्स्ट मानेंगे तो सर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगी ना सर. चलिए देखते फिर cos x sin x हो जाएगी. sin x upon x dx. फर्स्ट फंक्शन किसे मानना, 1 upon x को. 1/x और sin x का माइनस cos x है, माइनस cos x. यस माइनस इंटीग्रेशन 1 upon x इज log x, log x माइनस तो प्लस cos x माइनस cos x. यस सर. चलिए फिर अब ये हो गया माइनस cos x अपॉन x. नाउ व्हाट अबाउट, इसे फिर करें. अब फर्स्ट किसे मारे? इसको. यस सर. इसको log x को फर्स्ट सेकंड मानिए सर. फर्स्ट. यस सर. फर्स्ट इसको cos को. चलिए सेकंड फिर बाहर आ जाएगी सर. तो cos x हो गया. और नहीं सर, पहले log को मानना पड़ेगा ना सर, आइलेट रूल से. log को फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए. सर आइलेट रूल से log x को मानना पड़ेगा. log x sin x, log x sin x. हाँ, तो log x एज इट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये होगा है. यस सर. यस सर. log x sin x हाँ माइनस हाँ 1/x 1/x sin x. sin x हाँ sin x सर. अब इसको जो फर्स्ट वाला है उसको i माने हैं, यहाँ पे i रख देंगे. ये आई था. अब इसको इधर ला करके ऐड कर लेंगे. यस सर. 2i हो जाएगा. तो 2i इज इक्वल टू माइनस cos x अपॉन x प्लस log sin x. log x sin x प्लस c. यस. i की वैल्यू निकल कर आई है. अभी कितना कॉम्प्लिकेटेड था दिस थिंग सर. कॉम्प्लिकेट, हाउ मच इट वाज कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे क्या हुआ था देखना जरा. एक लाइन में y की वैल्यू रखी आपने, अपर लिमिट लगाई, x कैंसिल, sin x माइनस cos x है ना. सर यहाँ y के रिस्पेक्ट में किए थे ना, तो फिर x के तो लिमिट हो जाएगी फिर. जी सर. जी बताइए सर. ये जो आपने i इक्वल टू जो फर्स्ट लाइन में लिखा है 1/x माइनस cos x, तो सर ये जो दोबारा से इंटीग्रेशन करा है इसमें सर log x डिफरेंशिएशन होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस 1/x स्क्वायर आएगा ना. माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन. हाँ सही कह रहे हैं. और क्या ये जो यस सर फर्स्ट वाले में ये आपने गलत दिखवा दिया भाई हमसे. ये तो क्या आएगा, माइनस 1/x स्क्वायर आएगा. ये माइनस 1/x स्क्वायर है. तो फिर ये तो फंस जाएगा मामला. इट विल बी माइनस 1/x स्क्वायर. वो इंटीग्रेशन को ही है, सही पकड़ा है इन्होंने बिल्कुल. आप क्या करेंगे अब बताइए.
वो ठीक है, लेकिन अब हम कुछ लोग नहीं होगा फर्स्ट में सर। जो माने हैं ना सर, वन हाँ अपॉन एक्स को सेकंड मानेंगे, साइन एक्स को फर्स्ट मानेंगे, तब जाके नहीं होगा। तो रूल तो हाईलाइट रहेगा आपका। यस सर। आइलेट रूल से तो भाई फर्स्ट लॉगरिथमिक अलजेब्रिक। ज्योमेट्री को लेना हाँ होगा ना पहले। तो फिर ठीक आप है ये राइट। लेकिन आप फिर करेंगे तो फिर ये आपके पास वन अपॉन एक्स क्यूब पता चला जाएगा ये तो, क्योंकि साइन यस सर, कॉस यस का सर। इंटीग्रेशन रिपीट होगा, तो इट विल बी कीप गोइंग ऑन, है ना। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, इट मीन्स यू हैव टू यूज सम डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड इट। सम इंटीग्रेशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इवन सम यू कैन नॉट फाइंड लाइक दिस, हमें फिर कुछ इंटीग्रेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी, आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस से पढ़ा होगा इंटीग्रल टेक्निक्स, है ना, जैसे सिम्पसन्स मेथड होता था, सिम्पसन्स मेथड, या आपका वो था ट्रेपेजॉइडल रूल था, ठीक, कुछ हमें न्यूमेरिकल टेक्निक्स से सॉल्व करना पड़ेगा कुछ फिर। तो समटाइम्स it is not easy to solve in one way, but in another way it is easier। जैसे ये वाला वे था, 1 मिनट में आंसर आ गया, देखिए, ठीक। तो इसलिए समटाइम्स दिस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही लाइफ में होता है, कभी कोई प्रॉब्लम बहुत ही टफ लग रही होती है, थोड़ा सा रोटेट करके देखिए, सोच के, तो प्रॉब्लम इजी हो जाती है कि नहीं है। तो यस। मैथमेटिक्स टीच यू लाइफ लाइफ रूल्स आल्सो। कोई प्रॉब्लम बहुत टफ लग रही है तो दूसरा वे सोचिए कि यार कोई और आसान तरीका तो नहीं है, मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, दूसरा तरीका सोचेंगे, उसमें आपको लगता है यार ये तो बहुत आसान था। तो फाइंडिंग लिमिट्स, हाउ टू फाइंड, वैसे तो लिमिट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इस प्रॉब्लम में, हाउ टू फाइंड, लेकिन इन जनरल हाउ टू फाइंड, तो नेक्स्ट थिंग इज फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, जैसे हम यूजिंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस, वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस, वर्टिकल मीन जैसे अभी हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी, तो बाय द एग्जांपल वी आर टेकिंग वन एग्जांपल, एंड इन द एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड द लिमिट। ये जो हमने लिमिट लिखी, कैसे लिखनी है लिमिट, ये जो लिमिट लिखी थी अभी, ये है ना, ये मैंने वैसे एक्सप्लेन करी है, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ ब्रॉडर वे। तो सपोज आपको टू फंक्शंस गिवन है, रीजन गिवन है आपको, सपोज अ रीजन इज गिवन टू यू। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, ऑलवेज आपको ये प्रॉब्लम फाइंड करनी है जब भी, एफ एक्स वाई डी ए एंड सम रीजन विल बी गिवन टू यू। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, स्केच द रीजन, स्केच द गिवन रीजन। सबसे पहले स्केच करना, अगर आपने स्केच नहीं किया यू में गेट कंफ्यूज, यू में पुट द रॉन्ग लिमिट्स। जैसे मैंने यहाँ पे पहले स्केच करा था ये रीजन, सपोज आपका रीजन गिवन था, वो हमने स्केच करा, ये आ गया, ठीक, सब रीजन विच वाज गिवन टू यू। रीजन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक रीजन गिवन था सपोज प्रॉब्लम में, ठीक है, हमने रीजन प्लॉट कर लिया कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट a region lying between x plus y is equal greater than equal to 1 and x square plus y square less than equal to 1। तो ये जो रीजन आएगा जब आप प्लॉट करेंगे उसे, है ना। स्केच आप कर सकते हैं, यस सर। क्योंकि स्केचिंग में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं गिवन होगी, कुछ सर्किल या कुछ आपका लाइन या कुछ भी हो सकता है। स्केचिंग इज नॉट अ टफ टास्क because you have studied calculus, you have studied your coordinate geometry, everything। First you are sketched, second step will be what, finding the y limit, क्योंकि मैं vertical cross section ले रहा हूँ, तो first limit I will find y limits, finding y limits, ठीक है। तो y limits के लिए what I told you, because you know y limits is lying along this vertical axis, so for find y limit what I will do, I will take a ray parallel to y axis, keep in mind ना, draw a ray, draw a line, बल्कि ray नहीं है line है, draw a line parallel to y axis, this is important thing, parallel to y axis। So where y enters the region, that will be your lower limit, and where y leaves the region, that will be your upper limit, क्योंकि नीचे से ऊपर पड़ती है, you know। So where, इससे अगर हम लाइन को L कह दें, where L enters the region,
region, ये आपका region R है, suppose this is region R, enters the region R, that is the lower limit of y, which you will put in terms of x, keep it in mind, है ना, in terms of x, ये ध्यान रखना है, in terms of x, and where L leaves the region R, यहाँ पर से है ना, that will be the upper limit of y in terms of x, ये भी in terms of x, ओके ये आपका सेकंड। तो यहाँ पर y की लिमिट क्या हो गई, y is equal to x minus 1 is the lower limit, y is equal to 1 minus x, and here the upper limit is what, बताइए। y is equal to 1 minus x root under। हाँ, वैसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। बट यू नो बिकॉज यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो व्हाट यू विल टेक, y पॉजिटिव, है ना, स्क्वायर रूट पर। हाँ ये ध्यान रखना, अगर इस सर्किल आपका नीचे आता तो y नेगेटिव, क्योंकि अपर है, अपर आपकी पॉजिटिव y एक्सिस है, तो आई विल टेक द पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस नहीं। सर जो पैरेलल लाइन की जो डिस्टेंस होगी सर, वो ओरिजिन से कुछ, वो उससे कुछ डिफरेंस पैदा नहीं होगा इस लाइन से, ये डिफरेंस नो आपको सर, वो और ओरिजिन से सर, वो जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होगा सर, वो कुछ भी ले सकते हैं। ये डिस्टेंस, यस सर, पैरेलल लाइन की सर। ये पैरेलल लाइन की डिस्टेंस, तो पैरेलल लाइन की जो डिस्टेंस है वही तो आपको एक्स की लिमिट देगी। अब इस पैरेलल लाइन की डिस्टेंस से मुझे एक्स पता चलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कहाँ चल रही है, एक्स पे, है ना, तो ये डिस्टेंस मुझे एक्स लिमिट देगी, दैट इज योर थर्ड स्टेप। अभी तो हमने वाई की लिमिट ली है सर, क्लियर। ओके सर। हाँ अब बात करते हैं पैरेलल, जो आप बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट इज, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, फाइंडिंग एक्स लिमिट्स, फाइंडिंग एक्स लिमिट्स, एक्स लिमिट्स के लिए व्हाट आई विल टेक, चूज x limits that include all the vertical lines, through R, ठीक है। चूज एक्स लिमिट्स दैट इंक्लूड ऑल द वर्टिकल लाइंस, तो ये कितनी वर्टिकल लाइन जा सकती है थ्रू आर, तो वही जो आपसे आप कह रहे थे कि ये अगर लाइन है, कितनी वर्टिकल ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितनी हो, एक लिमिट ही है, एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। वर्टिकल लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, तो इट विल बी योर वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल, दिस लाइन कैन मूव अप टू हेयर वेयर एक्स इक्वल टू 0, एंड मैक्सिमम इट कैन मूव अप टू, कितना मूव कर सकता है बताइए, 1। हाँ देखिए, तो आई कैन टेक मैक्सिमम, मिनिमम अप टू दिस, इसको हम मूव कराएंगे यहाँ से, फिर से मिनिमम यहाँ तक आएगी, और मैक्सिमम ये लाइन कैन मूव अप टू दिस मैक्सिमम, है ना, यहाँ पर इस पॉइंट से होकर जाएगी, इस पॉइंट पे क्या होगा आपका एक्स, आप निकाल सकते हो, सॉल्व करके दिख रहा है एक्स इक्वल टू 1, इसकी जो रेडियस है ये, है ना, सो इट मीन्स व्हाट, सो इन दिस प्रॉब्लम योर एक्स विल बी 0 to 1, यहाँ पर x को y के टर्म में नहीं रखना है, कीप इन माइंड x यहाँ पर फिक्स, यहाँ पर x को 1 माइनस वाई मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अगेन इंक्लूड नहीं करना है, सो दैट विल बी योर y लिमिट। सो व्हाट यू गॉट हियर, सो दिस डबल इंटीग्रल r f(x,y) dA, अब f(x,y) आपको गिवन होगा जो भी फंक्शन हो, दिस कैन बी रिटन एज, तो फर्स्टली y की लिमिट y इज इक्वल टू 1 minus x to positive 1 minus x square, x is equal to 0 to 1 fxy dy dx, okay, it is the limit of y and then x, this is using vertical cross section. Similarly, if you are using
horizontal, है ना, horizontal cross section means now what you have to take first. सर पहले एक्स को लेना होगा। हाँ, फर्स्ट स्टेप अब भी सेम है, स्केच द रीजन। फर्स्ट स्टेप इज सेम। सेकंड स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप तो आपका रीजन जब आप स्केच करेंगे तो रीजन तो वही आ रहा आपका जो भी आया था, है ना। सपोज रीजन आपका ये, आई एम टेकिंग द सेम रीजन, x plus y is equal to 1, x square plus y square is equal to 1. So this is the region. Now because horizontal है तो finding, firstly I will find x limits, ध्यान रखना है ना, finding x limits, finding x limits. So same step, बस firstly draw horizontal line, वहां vertical थी, draw horizontal line parallel to x axis. तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी, सपोज आई एम टेकिंग दिस कलर लाइन, दिस इज योर लाइन. So where this entering the region, that is your lower limit, where it is leaving the region, that is your upper limit. Same thing, lower limit in terms of now y, है ना, you can write. So where, इसको लाइन को मैं l को m कह देता हूँ, वहां l m था, where m enters the region, that is your, क्योंकि x आपका लेफ्ट से राइट बढ़ता है तो इधर लोअर होगा, ये अपर होगा. Where enters the region, that is the lower limit of, नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, lower limit of x in terms of y, so here it is how much, अब यहाँ पे क्या होगी लिमिट, ये x is equal to 1 minus y, है ना, y in terms of y, in terms of ब्रैकेट में लिख दिया है, and where this line m leaves the region, or that will be the upper limit of x, same in terms of y. 1 minus x square हाँ, रूट वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि here it is leaving, तो x square is equal to 1 minus, लेकिन क्योंकि राइट फर्स्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x भी पॉजिटिव होगा, so I will take पॉजिटिव, है ना, so that is x equal to 1 minus x square. थर्ड आपके पास वही, थर्ड स्टेप में you have to take all the lines parallel to x axis, है ना, and which is covering all the y limits. थर्ड थिंग वही आपका स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगी आपके पास, अब ये लाइन मैक्स में कहाँ तक जा सकती है, y की लिमिट के लिए मिनिमम इट कैन गो अप टू दिस, इस पॉइंट तक मिनिमम है. सो हेयर व्हाट इज योर y की वैल्यू, y इज व्हाट, 0, एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू दिस, व्हाट इज y हियर, 1, है ना, क्योंकि तो थर्ड स्टेप वही है कि चूज y लिमिट्स दैट इंक्लूड ऑल द वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, चूज y limits that include all the horizontal lines. Through R. So here in that case, double integral R fxy dA, it will be what? Firstly, you are taking the limit of x. So x is equal to 1 minus y2 under root 1 minus y square f of xy dx, and y will be 0 to 1 dy. ओके, तो ये आपके पास लिमिट्स निकाल, समझ में आ गया, लिमिट्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है सबको. चलो, तो टाइम इज 6 minutes 33 seconds. एक प्रॉब्लम ले लेते हैं वेरी क्विकली. एग्जाम्पल 3, पेज 846. स्केच द रीजन
You people will tell me this problem, how to solve it. Sketch the region of integration for the integral 0 to 2 x square to 2x 4x plus 2 dy dx. ओके, इसको करना एंड आगे है और इसमें मोर ओवर एंड राइट एन इक्विवेलेंट इंटीग्रल with the order of integration रिवर्स में लिखना है ना। अब ये इंटीग्रेशन है, देखो इसमें ये लिमिट किसकी होगी बताइए, फर्स्ट लिमिट ये किसकी लिमिट है सर y की, y की है ना। प्रॉब्लम में नहीं लिखा लेकिन ये dy आ रहा है, यहाँ dy नहीं भी हो, अगर x में दे रखा है तो y की लिमिट अंडरस्टूड है और ये x की होगी फिर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज स्केच द रीजन। तो देखो रीजन आपका क्या है, r x लाइंग बिटवीन 0 to 2 and y lying between x square to 2x. When you will plot it, you can plot it easily, कोई वैसा complicated नहीं है। पहले y plot करते हैं, y क्या है x square, तो y is equal to x square, you know it's a upward parabola है ना। yes ये upward parabola होता है passing through, और y is equal to 2x क्या है, it's a line, क्योंकि 2x से y is equal to x होती है between 45 डिग्री, y is equal to 2x कहाँ होगा, थोड़ा सा और ऊपर होके जाएगी है ना। एंगल अगर आप निकालेंगे थोड़ा सा x की, it will be towards y more. So it is your y is equal to x square, y is equal to 2x and x कितना है 0 to 2, तो x is 0 का मतलब y एक्सिस है ना, ये x 0 तो ये हो गया, what is x equal to 2, sir, ये पॉइंट 2 है क्या, देखना 2 इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो 2 कहाँ लाई करेगा, देखिए सॉल्व कर लीजिए, y की जगह x स्क्वायर रखो तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा 0,2 है ना, तो ये 2 है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 2,4 यानी कि x यहाँ तक होगा, x में ये पूरा ले सकता हूँ है ना। तो रीजन ये क्या है, रीजन आपका दिस इज द रीजन, इज इट क्लियर। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या था, स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रल, अभी हमें सिर्फ स्केच करना था, इसे एवेल्युएट नहीं करना, एवेल्युएट करना तो इजी है। अब हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होगा बताइए, नाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो चेंजिंग का अभी आपके पास ये y में था, अब चेंजिंग का मतलब क्या होगा, फर्स्टली आई विल टेक द लिमिट ऑफ किसकी, x सर, x की, तो x की लिमिट अगर आप लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने क्या बताया था, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट थिंग स्केच, तो स्केच तो है ऑलरेडी, स्केच तो ये रहेगा, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे अगर आपको पहले x की लिमिट लेनी है ना, सिंपल सा स्टेप है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन हॉरिजॉन्टल टू x एक्सिस, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल टू x एक्सिस बिकॉज़ आई वांट, हाँ x is entering here, so what is x here, y/2, that is your lower limit, x is equal to y/2, here it is leaving, here how much x is √y, पॉजिटिव साइन रहेगा, पॉजिटिव √y है ना, ये एंटर कर रहा है, ये लीव कर रहा है। व्हाट अबाउट y बताइए सर 0 to 4, 0 मिनिमम है ना, इस वी विल ड्रॉ ऑल द लाइंस, वी विल से द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, सो y इज इक्वल टू 0 to व्हाट इज अपर लिमिट 4 है ना, 0 to 4 4x plus 2 and dx dy, ठीक है। वैल्यूज के में निकालनी नहीं, अगर पूछेंगे कि स्केच एंड इवेल्युएट तो वैल्यू निकाल सकते हैं आप, कोई बड़ा काम नहीं है, इट इज इजी। मेन थिंग था
कि चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. यस सर. गुड. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इट्स गुड. सर बिना स्केच किए सर हो ही नहीं सकता ना ये, हाँ. मतलब ऑर्डर इंटीग्रेशन चेंज नहीं कर सकते. कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना. यस सर. वैसे तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में एक बार को आपको दिख सकता है शायद, बल्कि लोअर लिमिट तो आपको ये दिख रही है कि यहाँ पर अगर y इज इक्वल टू एक्स कोई करना चाहे तो आप सोचेंगे कि इसका मतलब कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई है. अब यहाँ आप लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 2x है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई बाई 2 है. तो कोई सोच सकता है कि ये वाली, अब इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी ये देखना होगा आपको कि y बाई 2 मिनिमम है, ये आ गया. अब इसमें आपके पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो रूट वाई, इन दोनों में जो ज्यादा रहेगा वो अपर लिमिट होगी, है ना. अब आप अगर चेक करें कि अगर y 4 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है. अगर y 9 है तो ये कितना आएगा, x 3, और ये आएगा, ये 4.5. तो ये बड़ा लग रहा है लेकिन लोअर लिमिट आपकी ये हो रही है. कंफ्यूज हो जाएंगे. यस सर. तो हमें प्लॉट करके आइडिया लेना पड़ेगा कि व्हाट, क्योंकि 9 एक्चुअली हो क्या रहा होगा, 9 इस रीजन के अंदर ही नहीं है, 9 तो बाहर चला गया. अगर आपने y 9 लिया इट इज गोइंग आउटसाइड, तो हम वहां पे नहीं कह सकते, हमें तो इसी में रहना है.